السلام علیکم. ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں چند ویڈیوز کے ساتھ اور اپنے کچھ عام پاکستانی لوگوں کے ساتھ جو ان ویڈیوز کو دیکھ کے اپنا ریاکشن بتائیں گے. آئیے اسٹوڈیو پہلا ویڈیو دیکھتے ہیں. عطاءاللہ تارڑ اب ایف آئی آر نہیں ہوا ہوا، کوئٹہ میں واردات ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی یہ تو عمران خان نے کرایا ہے، عمران خان اور عمران خان نے موٹر سی اور یہ وہ نے کرایا ہے اور کل پیشی لگی سی اس پیشی اس نے وہ ہی گوز ان ٹو دا میڈیا. مجھے اینکر اس نے مجھے کہیں فون کر لیا. میں نے کہا یہ میں نے بھی سنا ہے آپ ہی کے پروگرام میں، یہ پہلے وہ کہہ رہا ہے پھر آپ نے مجھے فون کر دیا. یہ انتہائی بےہودہ طریقہ ہے. اور عام قتل ہو نا، کوئی ایسا قتل ہو جس کا مل نہ رہا ہو سراغ. ایک تو ہے نا سامنے مارا 10 آدمیوں کے سامنے، بازار میں مارا، گھر میں مارا تو 2 سروائیونگ پی ڈبلیو رہ گئے. ایک ہوتا ہے اس کا کوئی نامزد نہیں ہوتا. اب اس میں جب تفتیش والا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے شور کون زیادہ بجا، واویلا کون زیادہ کر، رونا پٹنا کے نہیں پایا، سیاپا کی نہیں پایا. وہ اس کی طرف اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھ لیں، میک بیتھ شیکسپیئر کا پڑھ لیں. وہ لیڈی میک بیتھ مار کے بادشاہ کو خود اور سب سے زیادہ شور ڈالے. وہ باقی سارے کہتے ہیں یہ بوڑھی نے کیتا. تو وہ یہ جو عطاءاللہ تارڑ ہے اس کو کیا خبر تھی کہ یہ قتل ہونا ہے اور قتل کا پرچہ عمران خان پہ اور عمران خان پہ کرا دیا پرچہ. میں کوئی طرفدار عمران خان کا طرفدار ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو ایک یہ اسی طرح کا یہ ہمارے گھروں پہ انہوں نے بنایا ہے کہ ہمیں ذرا رنجش ہو جائے عمران خان سے. اب جو اس میں سمجھتا ہوں کس کیس میں یہ آئی جی یہ ڈی آئی جی میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے کی ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کو جرا کرنے کی، ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کی جو تفتیشی کا کام ہے ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے، ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نے کہا. آپ نے دیکھا ویڈیو تھا، اس میں اعتزاز احسن صاحب تھے، کھوسا صاحب تھے، سردار کھوسا. تو ہم آپ کا ریاکشن لیتے ہیں. ہم پہلے چلتے ہیں عظما آپ کی طرف. جیسے کہ آج کل پتہ ہے آپ کو یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں نا پاکستان میں زیادہ، تو اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا بھی کیس خان صاحب کے اوپر کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پارٹی کا وہ سونامی کا کرتے تھے نا، تو یہ بھی کیس ان پہ بنتا ہے. حالات تو اس طرح کے ہیں نا آج کل، کچھ بھی پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ فوراً سے پیشتر. مطلب خان کی جان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے گولیاں ماری، تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے. نام جن لوگوں کا جنہوں نے کیا یہ ان کا نام نہیں لے سکتے ہم لوگ. اور ادھر کوئٹہ میں کچھ ہوتا ہے، پشاور میں کچھ ہوتا ہے، کراچی میں کچھ ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے فوراً سے جا کے تو مطلب مذاق بنا کے رکھ دیا ہے نا انہوں نے ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کے قانون کا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ مذاق کے علاوہ کیا ہے؟ نہ کوئی اس کی خود جو وکیل جس کو انہوں نے مارا ہے اس کی خود کی بیوی نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے اور اس نے بتایا کہ کون اصلی قاتل ہے، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے اپنی بات پہ کہ انہوں نے بس یہی کرنا ہے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بالکل جی بالکل. ڈاکٹر ٹی آپ کی طرف چلتے ہیں. جی میں جب دیکھیں 2 باتیں اس میں. پہلے تو یہ کہ یہ وہ ملک ہے جس میں آج تک 1947 سے اب تک جتنے بھی کچھ مطلب اسپیشلی سیاسی قسم کے جو قتل ہوئے نا، تو کسی کے آج تک پتہ نہیں چلا، کسی کی انویسٹیگیشن سے آج تک پتہ نہیں چلا کہ مجرم کون تھا. ایون مطلب اگر ہم ریسنٹ ترین جو اگزامپل ہے وہ دیکھیں تو بے نظیر بھٹو جو تھیں، ان کی جب وفات ہوئی تو آج تک قتل ہوا ان کا تو پتہ نہیں چلا. آپ کو شاید کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ یورپین یونین سے ایک ٹیم بلائی گئی تھی کہ وہ آئیں انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے جو ایک ریپریزنٹیٹیو تھا اس نے بتایا تھا کہ کیسے جب وہ آیا تھا تو اس کو ایک فائل پکڑا دی گئی تھی. رحمان ملک صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے آلریڈی انویسٹیگیشن کری ہے تو آپ کا کام آسان ہے، آپ بس 1 ہفتہ یہاں پہ انجوائے کریں. تو ایک
एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि आज तक पता नहीं चला कि उनके मुजरिम कौन थे और कहाँ थे। यहाँ एक तरफ ये हाल है कि विद इन आवर आप कोई मतलब कोई रूल, कोई कानून, कोई एफआईआर कुछ वो नहीं है फॉलो। बस कुछ भी हो जाए, नाम कौन, इमरान खान, कुछ भी हो जाए इमरान खान। वो जैसे अभी उज़मा भी कह रही थी, एग्जैक्टली वही बात है कि अगर हवा भी तेज चल जाए तो वो भी इमरान खान के कसूर है, अगर धूल उड़ जाए तो वो भी इमरान खान का कसूर है। एक तरफ तो ये बात, दूसरी तरफ ये बात है कि ये जिस दिन ये हुआ था ना, और जब ये अता तारड़ साहब ने आके कहा था, उस दिन मुझे एक कॉल आई और एक बिल्कुल टोटली जो है ना घरेलू खातून, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे हुआ है और अता तारड़ ने आके कह दिया कि ये जो है उसने किया है, इमरान खान ने किया है। और मुझे आगे से कहती हैं तुम अभी देखना थोड़ी देर में जो है वो ये हैं दोनों एतजाज एहसन साहब और ये जो हैं ये करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे। वो कहने लगी मैं घरेलू खातून हूँ, मुझे पता चल रहा है तो बच्चे को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैंने ये बताया वाकया इसलिए बता रही हूँ कि ये अगर समझते हैं इस वक्त में जो हुकूमत में बैठे घुसपैठिए, अगर ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है और ये कोई भी केस करते जाएंगे 200 से ऊपर जाके सेंचुरी बना देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो ये इनकी जाहिर है कि खाम ख्याली है बल्कि बेवकूफ़ी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो 80s की सियासत में और 90s की सियासत में इनको पता ही नहीं है कि मुल्क और दुनिया आगे बढ़ गई है, अवाम आगे बढ़ गई है, लोगों के शऊर आगे बढ़ चुके हैं, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल आपने ये कहा कि और यही अवाम को भेड़-बकरी समझना, अवाम को बिल्कुल ना बेवकूफ़ समझना, यही इन लोगों की सियासत पिछली कई दिहाइयों से रही है। जी, माविश, आपका क्या? बड़ी ही अच्छी बातें की उज़्मा ने भी और डॉक्टर तस्लीम ने भी, लेकिन मैं एक बड़ा जब मैं ये देख रही थी ना वीडियो क्लिप, तो एक ज़माने में इन माय टीनेज मुझे ना बड़ा शौक हो गया था पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ देखने का ना, वो जिसमें रफ़ी और किशोर के गाने-वाने होते थे, तो उसमें ना बड़े फ़नी सीन होते थे। कातिल आता था, छुक, 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 छुरी मारी, अपने ऊपर लगी हुई खून कमीज़ बदली, अपनी खून वाली छुरी दूसरे को पकड़ाई और पुलिस को ब सबसे ज़्यादा स्यापे डाल के शोर मचा के पुलिस को बुला रही है और पुलिस आके कहती थी जिसके ऊपर उसने ऊपर से केचअप छिड़क के खून लगाया होता था ना, हम उस ज़माने में ना वो मूवीज़ देख-देख के हँसा करते थे कि यार ये देखो ज़रा, ये क्या मूवीज़ बनाते थे? क्या लोग ये मानते होंगे? मुझे लगता है कि इनके हाथ जो पीडीएम के हाथ जो स्क्रिप्ट राइटर लगा है ना, वो उसी ज़माने का कोई वो स्क्रिप्ट राइटर है क्योंकि वो सस्ते में मिल गया होगा। वही वाली बॉलीवुड के पुराने जो फ्लिक्स होते हैं ना, वो आपको आसानी से आजकल खबरनामे में देखने में मिल जाते हैं। कि और ये समझते हैं कि अवाम अभी भी उस दौर में जी रही है। जस्ट बिकॉज़ इनका राइटर उस दौर का है, इनको ये लगता है कि आजकल के डिजिटल दौर में, जहाँ पे फोरेंसिक की इतनी एडवांसमेंट्स हैं, ये वाली बातें अवाम मान लेगी। यानी अगर आप किसी बहुत से रिमोट से देहात में भी जाएँ ना और उसके बाद आप जाके उनको ये कहानी बताएँ, तो वो ये कहेंगे, "नहीं, ये स्टोरी ना आर्टिकुलेटेड नहीं लग रही।" मुझे मुझे शर्म आती है, अफ़सोस होता है सिर्फ़ इस उनकी अकल पे नहीं, क्योंकि उनके पास तो थी नहीं। अफ़सोस इस बात पे होता है कि ये हमें इतना बेवकूफ़ समझते हैं, ये तो तौहीन है हमारी ज़हानत की। वही पाकिस्तान जो है ना, वो एक न्यूक्लियर पावर है, इतना पोटेंशियल है इसके नौजवान के और इसके लोगों के ज़हन-ओ-दिमाग में। लेकिन ये समझते हैं कि 60s का बॉलीवुड फ्लिक को अगर ये घुमा-फिरा के और वो मेकअप-शेकअप करके लोगों के सामने रख देंगे तो हम वो मान लेंगे। तो क्या-क्या बनना है इन लोगों को? बस अल्लाह हिदायत ही दे इनको। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तीनों की बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत अच्छी बातें, क्योंकि वाक़ई ये जो है ये पाकिस्तानियों को कुछ नहीं समझते, बेवकूफ़ समझते हैं, दुनिया को समझते हैं। ये आज तक ये समझ रहे हैं कि ये वो 70s और 80s का ज़माना है जिसमें ये पीटीवी को अगर बंद कर देंगे या पीटीवी को अपनी नैरेटिव दे देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का चैनल है तो कोई सच तक पहुँच ही नहीं सकता। बिल्कुल सीधी-सीधी सी बात है। वो अंग्रेज़ी में एक क्योंकि अब शेक्सपियर की ही बात कर रहे थे डॉक्टर एतजाज़ अहसन लेडी मैकबेथ की, तो वो कहते हैं ना, "मीथिंक्स द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच।" तो मेरे ख़्याल में कि वो यही वाली बात है कि जब कोई है जो बहुत ही ज़्यादा नहीं जी मैं तो कुछ किया ही नहीं कर रहा हूँ, तो पहला शक तो वहीं जाता है, वो बस थोड़ी-सी 2 पैसे की अकल वाली बात होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम दूसरे व्लॉग की तरफ चलते हैं वीडियो की तरफ। निजाम बनाया हुआ था, उन्होंने लॉर्ड मैकॉले की स्टेटमेंट पढ़ ले, मिशन जब उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए थे, क्यों बनाए थे?
लॉर्ड मैकॉले ने बनाया इसलिए नहीं थे कि वो कोई एक नेशन बिल्ड करना चाहता था, वो गुलाम बनाना चाहता था। इमरान खान तो भी इसलिए- इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकला है, नेशन बिल्ड करने चल पड़ा है, क्या और हो गया इसलिए आपको? इमरान आप क्या टाट स्कूल से पढ़े और हैं? इसलिए इमरान खान समझता है कि सिस्टम गलत है। ये नाइंसाफी के ऊपर है, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए बिल्कुल गलत है। जब तक एक मुल्क के अंदर नेशनल सिस्टम करिकुलम नहीं आएगा, हम एक नेशन नहीं बन सकते। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर्स सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। कि वो जो लॉर्ड मैकॉले ने आज से 150 साल पहले उन्होंने ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेके आए थे, इसका एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वो अंग्रेज ये चाहते थे, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, उसमें हुकूमत करने के लिए वो लोग चाहते थे जो उनकी मदद करें इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने की, और उनको उन्होंने ये क्लास बना दिया इंग्लिश मीडियम की। और उसका बड़ा क्लियर था कि ये होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी तरह सोचेंगे, हमारी तरह बोलेंगे, हमारा कल्चर होगा उनका। तो पहली चीज़ तो मैं शफकत आपको ये कहूँ कि ये वाकई एक पहला कदम है। ये अपने जहन में डाल लें कि इसमें बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको, आपकी टीम को आज खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी का दिन है कि ये जो 25 साल से सोच रहा था, और मुझे पता था बड़ा मुश्किल है, और मुझे पता है कि आपने बड़ी मुश्किलों से कंसेंसस डेवलप किया है, मैं आपको आज खास मुबारक देता हूँ। 25 साल, एक ही थॉट, एक ही फिलॉसफी, बदली नहीं। जब वो सियासत में पहली दफा आए थे तब भी उन्होंने ब्राउन साहिब्स का जिक्र किया था, और आज भी वही हैं। क्या ख्याल है आपका डॉक्टर टी? आपकी तरफ चलते हैं पहले। देखिए जब मैं ये वीडियो सुन रही थी ना, ये क्लिप सुन रही थी, तो मेरे जहन में सबसे पहली जो बात आई ना वो ये आई थी कि बाकी सियासतदानों और इमरान खान में एक जो बहुत वाज़ेह फ़र्क है ना, वो है कॉल और फ़ेल का एक जैसा होना। और यही जो फ़र्क है ना, क्योंकि वो इतना मतलब यानी रेयर, ये एक कहें कि क्वालिटी है, एक रेयर कैरेक्टरिस्टिक है इमरान खान की, जो वो कहते हैं उस पे यकीन करते हैं, या यूं कहें कि जिस पे वो यकीन करते हैं वही वो कहते हैं और उसी पे अमल करते हैं। और चूंकि ये सियासतदानों की क्वालिटी होती नहीं, मैं इमरान खान को सियासतदान उस तरह समझती भी नहीं, तो इसलिए उनको निकालने वालों को बहुत आसान लगा था, और उनको मतलब जो उनके साथ काम कर रहे थे उनको भी ये लगा था कि ये भी उन्हीं की तरह का सियासतदान है, इसको निकाल देंगे तो अवाम चुप। इमरान खान जो सोचता है ना वही कहता है, और फिर वो करके भी दिखाता है, और आपने हमेशा उनकी मतलब जो भी उन्होंने ठानी वो उसको उन्होंने करके दिखा। और एग्जैक्टली देखें, उन्होंने 2012 की हमने क्लिप देखी पहले, तो वो ये कह रहे थे। और देखिए एक और बात कि वो जब उनको मालिक साहब ने कहा कि आप तो खुद ही उसी इंग्लिश मीडियम के निकले हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, यानी इमरान खान वो बंदा था जो प्रिविलेज्ड था, वो बंदा था जिसको ये मतलब यानी वो प्रिविलेज क्लास से था, उसको सारी फैसिलिटीज, सारी बेहतरीन एजुकेशन, आगे मतलब बाहर पढ़ना, सब कुछ उनको मिला था, वो उस प्रिविलेज तबके से थे। लेकिन उनमें मोहब्बत किसकी है? पसमानदा तबके की। तो ये जो एक कंट्रास्ट है, और एक जो उनका वो है कमिटेड जो है, वो अपनी कॉज के साथ जो उनका कमिट होना है, ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान में रेयर हैं। इसीलिए लोगों को लगता है, अगर आप स्पीचेस सुने तो नवाज शरीफ भी कहेगा, अभी वो कह रहा है कि मैं चौथी दफा जब वजीर आजम बनूंगा तो फिर मुल्क की तरक्की जो है ना वो करूंगा। तो अल्फाज तो ये लोग भी बोलते हैं, लेकिन वो इसीलिए समझते हैं कि सारे सियासतदान एक जैसे हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो इमरान खान में यही है कि वो जो कहता है वो उसको करके भी दिखाता है, और उन्होंने कहा, और उन्होंने वो जो है यूनिफॉर्म जो करिकुलम था उस पर काम किया, और वो स्टार्ट भी किया। अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग इनफ नहीं था, मुझे नहीं पता कि अब वो चल रहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपना जो कहा वो करके दिखाया। बेशक, एंड बिल्कुल सही बात है कि दैट इज व्हाट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द अदर्स। इसी तरह से वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, और इसीलिए उन्होंने एक कलेक्टिव इमेजिनेशन पाकिस्तानियों की ग्रास्प की है। माविश, आपकी तरफ चलते हैं। मैं इमोशनल हो गई थी ये क्लिप देख के, क्योंकि जब खान साहब बोल रहे होते हैं ना, तो उनके लहजे का, जैसे अभी डॉक्टर तस्लीम कह रही थी कि बोलता तो नवाज शरीफ भी है,
लेकिन जब खान साहब बोलते हैं ना तो वो आवाज़ दिल को लगती है, वो दिल को महसूस होती है, लगता है कि ये वो आवाज़ है जिसका वाक़ई में जिसको हकीकी मायने में हमारा दर्द है। खान साहब की हर बात, हर प्रोजेक्ट, हर प्लान जो है वो वही है। ऐसा ये जो दूसरे जो बेचारे कम डबल डिजिट आईक्यू जो कह लें और जो लो आईक्यू लोग हैं, वो इसको ये कहेंगे कि ही इज़ रिडंडेंट ऑन वन थिंग, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रेपिटिशन ही वो चीज़ होती है जिससे एक बात अपने आपके स्टूडेंट के अंदर सरायत कर जाती है। तो उन्होंने तालीम की इम्पोर्टेंस और वो एक निसाब जो था उसका कॉन्सेप्ट पहले अवाम के अंदर डाला, उसके बेनिफिट्स डाले और उनके उनके हर स्टेप में ना एक इस्लामी एलिमेंट भी दिखता है। तो ही वांट्स मसावात, बराबरी, सबके लिए एक जैसा करिकुलम, ताकि सब एक ही लेवल का प्रिविलेज हो। और जैसे वो होता है ना कि हम जो ओवरसीज रहते हैं उनको ये वाली बात पता है कि अगर उनका बच्चा अगर पब्लिक स्कूल भी जा रहा है तो जिसके उसको पैसे वैसे भी नहीं देने पड़ते, माँ बाप पे कम बर्डन पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी स्कूलिंग खत्म करता है तो वो अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट खान साहब वांट कि हर बंदा एक लेवल पे, मेरे मुल्क का जो आगे जो नस्लें आ रही है ना, वो एक लेवल पे बराबर होके एक दूसरे के साथ आंखों में आंखें डाल के चले, कंधे से कंधा मिला के चले, बजाय इसके के सर नीचे करके सिर्फ वो रोटी कपड़ा और मकान की दौड़ में लगे रहे। तो अल्लाह ताला बस खान साहब को कामयाब करें, उनके हर मकसद, उनकी हर ख्वाहिश में। आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बेहतरीन बातें आपने भी की। उज़्मा, आपका मैं बात आगे बढ़ाऊँगी महविश और डॉक्टर तस्लीम की कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं भी वाक़ई इमोशनल हो गई थी कि इन लोगों ने हमसे क्या छीन लिया। कोई बात नहीं, वापस लेके आएँगे इंशाल्लाह खान को। तो जैसे उनका जो विज़न था एजुकेशन के बारे में, वो पहले नमल में उन्होंने करके दिखाया, जिस तरह वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो उस वक़्त उनकी ज़ाहिर है वो कैपेसिटी थी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो वो कर सकते थे। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो कितना मुश्किल था कि 2018 से लेके 2021 तक इतना टाइम लगा उनको उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करने में। इतना क्योंकि आपको पता है कि कितनी शदीद किस्म की मुखालफत भी थी, क्योंकि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिले हमारे बच्चों को और उनको भी तरक्की करने के उस तरह के मौके मिलें जैसे कि एलीट को मिलते हैं। तो और दूसरी ये जो बात है कि खान वाक़ई ऑब्वियसली ही वाज़ प्रिविलेज्ड लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि वो चाहते थे कि जो लोअर क्लास है सारी उनको भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। उनको क्या जब खुद कहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं तो ज़िंदगी में सब कुछ देख चुका था। तो उनका ये जो विज़न था और है जिसके ऊपर अमल उसी वक़्त हो सकता है जब वो ज़ाहिर है आप कंट्री को लीड करते हैं। तो एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेरी ना खुद की एक कज़न है जो ना एक स्कूल चलाती है। तो उसने मेरे साथ शेयर किया कि जब ये सिंगल करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने मेरे साथ शेयर किया कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं स्कूलिंग में ना। तो मैं हैरान रह गई उसकी बातें सुन के कि ज़ाहिर है एक चीज़ को देखना ये सोशल मीडिया पे या इस तरह इसका कंटेंट देखना और एक्चुअली ऑन ग्राउंड कोई बंदा आपके साथ शेयर करे जो एक्चुअल फील्ड में काम कर रहा हो। तो हैरान रह गई मैं उसकी बातें सुन के कि वो जैसे वो मुझे बता रही थी कि ये चीज़ जो है ये कैसे हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं उनको कैसे ये प्रोवाइड करेगी सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बाकी सबको है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह खान को जल्दी वापस लेके आए ताकि जो हमारे किस्म के अधूरे ख्वाब रह गए वो पूरे हों और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। बिल्कुल जी, मैं बस सिर्फ इसमें यही आप लोगों की सब बातों से मुत्तफ़िक हूँ और सिर्फ इतना ऐड करूँगी कि सिंध में 1970 से लेके आज तक एक ख़ानदान की हुकूमत है। वहाँ पे तालीम का मेयार या बल्कि तालीम ही नहीं होना और फिर आप थोड़े से उसमें चले जाएँ, एलीट पार्ट्स में आ जाएँ, कराची में आ जाएँ, बड़े शहरों में चले जाएँ तो जी वहाँ पे मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं वो ग्रामर स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ या मैं मोहल्ले के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। प्राइवेट स्कूल्स होना, गवर्नमेंट स्कूल्स का ना होना, लोगों के पास तालीम के लिए एक्सेस नहीं होना। लेकिन जिस बात पे सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ ना कि पीपल्स पार्टी अपने आप को लेफ्ट विंग कहती है और जब वो लेफ्ट विंग कहती है तो इसका मतलब है कि वो
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ पे बिलीव करती है, विच मीन्स इक्वालिटी ऑफ ऑल। और यहीं पे कॉल और फेल का तजाद दिख जाता है आपको कि जब खान साहब कहते हैं कि मुझे एक रियासत मदीना बनानी है, विच इज़ अ वेलफेयर स्टेट जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हों, अगर वही रियासत मदीना ना कहें लेकिन वही सोशलिस्ट वेलफेयर एक स्टेट की बात करी जाए, तो वही तो खान साहब चाहते हैं। तो इज दैट नॉट, क्या यही वो चीज नहीं है जो पीपल्स पार्टी जिसका नारा लगाती रही है? समन, इस पे सिर्फ एक बात मैं ऐड करूंगी। आप एक फैमिली का बजट सोचें और उसमें सोचें जिसमें बच्चे हैं, कि अगर उनको अपने बच्चों की तालीम पे खर्च ना करना पड़े और उनको हेल्थ के लिए हेल्थ कार्ड अवेलेबल और हेल्थ की फिक्र ना हो, तो आप सोचें कि उस घर का बजट कितना डिफरेंट हो जाएगा जब उनको यानी इस चीज की फिक्र नहीं होगी। तो यही तो गवर्नमेंट का रोल होता है जो इमरान खान साहब चाहते थे। बिल्कुल, मतलब कोई भी एक इवन वेस्टर्न सोसाइटीज में इस तरह की वेलफेयर आजकल नहीं मिल रही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, शेल्टर फॉर ऑल। तो अगर यही कोई एक इंसान है जो अपने मुल्क के लिए चाह रहा है, तो उसमें गलत क्या है? और 25 साल से वो तो उसी के लिए लड़ रहा है जी। और इसी के साथ स्टूडियो आज का आखिरी वीडियो देखते हैं। पीटीआई इमरान खान जिंदाबाद। सारे लोग पीटीआई छोड़, बाकी सारे चोर है, छोड़ने देना जी, छोड़ते हैं तो छोड़ने दें। इमरान खान जी सब तो जा रहे हैं, कह रहे जाने देना जी, यही लोग वापस आएंगे। वोट इमरान का। एक हॉनेस्ट बंदा जो है ना इस पाकिस्तान में और पाकिस्तानी कौम का हमदर्द, इमरान खान। वोट सिर्फ इमरान का जी। ठीक है जी, हाँ जी। मेरा ये वतन शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। खान साहब आपके फेवरेट हैं? दिल उसको दिया है तो वही इसमें रहेगा। हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। बेहतरीन बेहतरीन। अब के ऐसा करते हैं कि इससे मेरे ख्याल में हम सब की शक्लों से इस वीडियो के बारे में मेरे ख्याल में रिएक्शन तो मिल गया, लेकिन अब इस दफा मैं चलूंगी सबसे पहले मावेश की तरफ। जी मावेश। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लिप। मतलब ये मेरे ख्याल में ये रियल इमोशंस हैं हर पाकिस्तानी के। मेरी जब मैं ये देख रही थी ना, मुझे अपनी मेरी अम्मी एक बात कहा करती थी कि बच्चे जो होते हैं ना वो प्यार को पहचानते हैं। जब आपसे कोई प्यार, उनसे कोई असली प्यार कर रहा होगा ना, एक तो वो फेक कर रहे होते हैं, वो भी पहचानते हैं, और एक जेन्युइन प्यार होता है वो उसको भी पहचानते हैं, और जो उनको प्यार कर रहा होता है ना वो उसके साथ ना चिपक जाते हैं बिल्कुल। तो मुझे ना कभी कभी यही महसूस होता है, वही वाला प्योर इमोशंस वाला बच्चा कि जो अपने लिए हकीकी मोहब्बत कहीं से महसूस करता है और उसके बाद ना वो बस कहता है नहीं, ये मेरा इमरान खान है, मैंने इसको जाने नहीं देना, तुमने इसके साथ बुरा किया क्यों। जैसे अगर आपकी माँ के साथ घर में कोई ऊंची आवाज में बात कर देना तो कैसा दिल दुखता। आप छोटे से भी हो ना, आपका दिल दुखेगा, आपको तकलीफ होगी, आपका बस नहीं चलेगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, लेकिन आपका दिल चाहेगा कि पता नहीं बस सामने जाके पाँव पटक के हूं करके आ जाओ, लेकिन कोई रिएक्शन दो कि हाँ ये मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई है। यही पाकिस्तान कर रहा है, यही पाकिस्तान का बच्चा बूढ़ा और जवान कर रहा है। हमने वो मोहब्बत जो उन्होंने दी, हमने वो महसूस की, और अब उसके बाद ना हम कहते हैं नहीं, ये मेरा खान है, ये मेरा इमरान खान है, मैंने इसको जाने नहीं देना। बस यही मुझे कहना है। बेशक, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उस्मा, आपकी तरफ से? इससे एक तो इनकी ये जो कहते हैं ना कि सारे यूथ को खान ने गुमराह किया है, इस वीडियो में आपने नोटिस किया है कि जो बुजुर्ग हैं उन तक भी कैसे ये मैसेज पहुंच गया खान का। बुजुर्गों ने भी वैसे ही ओनरशिप ले ली हुई है खान के नजरिए की, जिस तरह के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने ली हुई है। तो एक और ये जो जज्बात लोग बयान कर रहे हैं ना, ये हकीकत है,
یہ حقیقت ہے. ایسے فیل ہوتا تھا جیسے جب خان ہمارا پرائم منسٹر تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ملک جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ہمارے ملک کی کوئی ویلیو ہے, ہماری کوئی انسان ہونے کے ناطے کوئی ویلیو ہے, ہمارے ملک کی کوئی عزت ہے. اب تو ایسے لاوارث سا فیل ہوتے, ہم بھی لاوارث فیل کرتے ہیں, اور ہمارا ملک بھی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے لاوارث ہو گیا. عجیب سا ان کے آنے سے نا, جس طرح سے انہوں نے اتارا ہے, عجیب سی ایک نحوست سی چھائی ہوئی ہے. انشاءاللہ لوگ جو تیار بیٹھے ہیں. میں نے تو اپنے ابھی کچھ عرصہ پہلے, ابھی 3-4 ویک ہوئے پاکستان سے ہو کے آئی ہوں, تو میں نے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے ہر ایک گلی میں, ہر ایک محلے میں, مطلب پورا ہمارے گاؤں میں نا تقریباً 400-500 گھر ہیں, اور ان میں سے 2 گھر جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, باقی سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو آپ سے اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک خان کا میسج جو سرایت کر گیا ہوا ہے ہر ایک پاکستانی کے دل کے اندر. اور جبھی تو الیکشن نہیں کرا رہا ہے. جی ڈاکٹر جی, آپ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ نہیں, صحیح بات ہے, آج نہیں تو کل کرنا تو پڑے گا. وہ پھر اپنی وہی کوشش کریں گے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک, ان الگ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ چیک کرائیں, اس میں کوئی ہو سکتا ہے مقصود چپڑاسی نکل آئے. بالکل جی. جی ڈاکٹر جی, آپ بتائیے. اچھا دیکھیں, جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی پہلے تو لٹرلی میرے گوز بمس تھے. آنیسٹلی میں پوری جو ہے نا وہ اندر سے کانپ رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی کہ ظالموں کیا چھین لیا, کیوں چھین لیا, اور کیا چھین لیا. جب لاسٹ ایئر یہ اپریل میں ہوا تھا نا, تو میں اس وقت پاکستان میں تھی. تو جو میری امی کی ہاؤس ہیلپ ہے نا, وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی, اور وہ مجھے کہتی ہے, وہ نا شاید آپ لوگ کو معلوم ہو کہ وہ تھا نا کہ وداؤٹ جو انٹرسٹ قرضے دینے تھے لوگوں کو, تو وہ لوگ, وہ اس نے اپلائی کیا ہوا تھا قرضے کے لیے, جو قرضے ہنسنا جس کو بولتے ہیں, اور اس نے اپنا گھر بنانا تھا اس کے لیے نا. تو وہ لٹرلی میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے مجھے کہتی ہے, باجی عمران خان آ تو جائے گا نا. مطلب وہ مجھے سرائکی میں کہتی, باجی عمران خان آ ویسی نا, باجی عمران خان آ ویسی نا. پتہ ہے کیا ہے, آپ یقین کریں کہ ہم نے اپنی لائف میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح جو پاکستانی ہے نا, وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہو, یعنی فیل کرتا ہو کہ یہ اونرشپ ہے, کہ یہ میری گورنمنٹ ہے. جیسے ابھی عظما نے بھی کہا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ ہمارا کوئی سرپرست ہے. میں نے یہ لوگوں کے اندر دیکھا, ان کو فیل ہوا کہ یہ جو ہے نا کوئی ہے جو ہماری کیئر کر رہا ہے, اور وہ لٹرلی مجھ سے یہ بات پوچھ رہی تھی. تو جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے, کیوں چھین لیا. مطلب پاکستانیوں سے وہ جو کنیکشن ان کو پہلی دفعہ لگ رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کیسے ہمارے, چاہے وہ کووڈ کے دوران میں تھا, اگر میں آپ کو مطلب ظاہر ہے کہ ہم پیچھے نہیں جا سکتے, اور میں کوئی اینٹیسپیشن نہیں مطلب وہ نہیں کر سکتی کہ پیشین گوئی تو نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کووڈ میں یہ لوگ ہوتے تو جو ہمارا ملک تھا نا, پتہ نہیں کتنی اموات ہوتی. کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایج وائز انہوں نے دی, جو وہ تھی ویکسین تھی. یہ نہیں سوچا یہ امیر ہے یا غریب ہے, کسی کو کوئی سفارش نہیں, کوئی کسی کو کسی کے پیسے نہیں, رشوت نہیں, کچھ نہیں. ایج وائز آپ گئے, آپ نے اپنی ویکسین لگائی, پورے ملک کو آپ نے محفوظ کر دیا. کانٹیکٹ ٹریسنگ کی آپ نے, پھر آپ نے صحت کارڈ دیا, پھر آپ نے یہ جو 12,000 دیا جو اس وقت جو تھا, پھر 16,000 کر دیا احساس کفالت کا جو تھا. پھر مطلب میں نے احساس پہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے, جو ابھی جو پروگرام ابھی لانچ ہونا تھا اور وہ تھوڑا سا آگے چلنا تھا, دیٹ واز امیزنگ. اور وہ پھر وہی بات کہ جو وہ تھی سبسڈی, وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو. تو اس سے ہوتا کیا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ لوگوں کو جوڑتا ہے. یہ جو بچے ہیں, کیا عمران خان نے ان کو کچھ دیا ہے؟ ان کے اکاؤنٹوں میں کچھ پیسے ڈالے, ان کے والدین کو کچھ دیا, کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف اونرشپ, اپنا ہونے کا احساس. پہلی دفعہ لوگوں کو لگا کہ یہ حکومت ہماری ہے, ہم سے کنیکٹڈ ہے, ہم سے جڑی ہوئی ہے. تو وہ جو جب وہ مطلب اب میں وہ دیکھ رہی تھی, اور وہ بہت دنوں بعد یہ جو ہم نے مطلب دیکھی, یہ جو فلیگ کی جو مہم تھی بہت خوبصورت تھی, اور لوگوں نے پھر سے اپنی محبت کا اظہار کیا. وہ ایک طرف خوبصورت بھی ہے, لیکن آنیسٹلی بہت دل کو تکلیف دیتا ہے کہ ظالموں کیوں چھین لیا ہمارا وزیر اعظم, کیوں چھین لیا ہم سے. سوری میں لمبا ہو گئی, لیکن میں واقعی جذباتی ہو گئی. نہیں, میرا خیال میں یہی وہ جذبات ہیں جو اس آخری والے ویڈیو نے, ویسے تو سارے ہی ویڈیوز کے ساتھ ریاکشن تھا, لیکن اس آخری ویڈیو کے ساتھ میں نے صرف یہ کہنا ہے
کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ جو پاورز دیٹ بی ہیں، جو ہمارے اوپر لوگ فیصلے کر رہے ہیں بند کمروں میں، چاہے وہ دبئی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا جہاں بھی، آپ سب کو، اب دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ وہ وقت ہے جب عمران خان پاکستان اور پاکستان عمران خان ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ، مہوش، ڈاکٹر تسنیم، عظمیٰ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، آئے ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آئیں گے کچھ لوگوں کے ساتھ اور کچھ اور ویڈیوز کے ساتھ، ان کے ریاکشنز کے ساتھ. بہت شکریہ.